that topic was completed. Again, in the 4th unit, disorders and health problems of a child, we have to see childhood. Under that, today we will see tonsillitis. What do you mean by tonsillitis? First of all, itis means what? Inflammation in anything. So here, tonsillitis means inflammation of the tonsils. First of all, tonsillitis along with pharyngitis, they are comorbidities. Comorbidities है जो कि because of inflammation या throat की inflammation या फिर infection की वजह से हो रहा है. Then अगर throat अकेला is affected, then that will be included under pharyngitis. और अगर tonsils inflamed है और else if tonsils are affected और else lymphoid tissues में tonsils mainly जो affected है, that is basically present in the oropharynx में, वो affected है तो tonsillitis. Understood? अगर सिर्फ throat is affected, then it is known as pharyngitis. Whereas if tonsils mainly the lymphoid tissues which are located where in the oropharynx, अगर सिर्फ वो affected है तो it will be termed as tonsillitis. अगर दोनों चीजें included है, for instance if both throat and tonsils both are affected as well as inflamed, inflamed means बड़े हुए भी है और infected भी है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? pharyngotonsillitis. Pharyngotonsillitis. Akansha, you got what I just said because it is not written in the slide. Yes, ma'am. So I told you all about pharyngitis and tonsillitis. Both are common comorbidities in which we are seeing tonsillitis. अगर inflammation of the throat और infection of the throat अकेले है तो वो pharyngitis है. If mainly tonsils affected है जो oropharynx में present होते हैं उनको tonsillitis बोलते हैं. अगर दोनों affected है tonsils as well as the throat infected inflamed दोनों है, then that condition is known as pharyngotonsillitis क्योंकि pharynx और tonsils दोनों की involvement है. Coming back to the topic which is tonsillitis, it is a term commonly used to describe the inflammation and infection of the two palatine tonsils. दो palatine जो tonsils है, in the image you can see दो side, यहाँ और यहाँ दोनों side पे infection और inflammation हो गई है, so that will be considered under tonsillitis. Purpose of these lymphoid tissues is to filter. क्या purpose है lymphoid tissues की? filter करना, protect करना. पहले तो you tell what are lymphoid tissues. I told so many times lymphoid tissue है, mainly lymphoid tissue है. lymphoid tissue क्या है? Any idea regarding lymphoid tissues क्या है? इम्यून रिस्पॉन्सेस को सपोर्ट करने वाले जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड अंडर लिम्फोइड टिश्यूज. लिम्फोइड टिश्यूज कहाँ कहाँ में है? टॉन्सिल्स में है, नोड्स में है, लिम्फ नोड्स में है और स्प्लीन में है. टॉन्सिल्स में स्पेशली यू विल बी सीइंग. सो पर्पस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू क्या है? पहले तो फिल्टर करना और प्रोटेक्ट करना. किससे? filter respiratory and protect and digestive tract from invasion of the pathogens. तो respiratory और digestive tract को filter करना और protect करना from pathogens. कोई भी unwanted stuff from outside any foreign body से protect करने के लिए. protect तो करता है लेकिन प्रोटेक्ट करते करते वो खुद इन्फेक्शियस हो जाता है, तो उसको खुद इन्फ्लेमेशन हो गई. Talking about the definition, it is defined as the inflammation of the tonsils which is characterized by sore throat and fever. पहले sore throat हो गई, फिर fever आ गई, उसके बाद tonsils enlarge हो गई. So it is an inflammation of the tonsils which has been characterized by sore throat and fever. Incidence. Incidence में it is first of all peak between 4 years to 7 years of age of children. सबसे ज्यादा किस में होता है? 4 से 7 years के बच्चों के बीच में. किससे हो रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शंस विच अकर मोर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स. ठंडी के वेदर में ज्यादा हो रही है और कहाँ कहाँ स्प्रेड होगी? क्राउडेड एरिया में. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेबल है, दूसरों को भी ट्रांसमिट हो जा रही है, दूसरों को भी हो जा रहा है.
क्राउडेड प्लेस में एक साथ रहेंगे, एक साथ बोलेंगे खाएंगे, उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है, ट्रांसमिट हो जाए। इटियोलॉजी में वी विल टॉक अबाउट बहुत सारी कॉजेज हैं टॉन्सिलाइटिस की और थ्रोट इन्फेक्शन की। पहली कॉज है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज बैक्टीरियल एजेंट। अगर बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो बैक्टीरियल एजेंट इज ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस कौन है? दैट टू ग्रुप ए में कौन है? व्हाई इट इज, व्हाट इट इज? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज, which is aerotolerant in nature, हवे में रहता है। टॉकिंग अबाउट वायरस, वायरस में डू रिमेम्बर एप्स्टीन बार वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। व्हाट ऑल वायरसेस आर देयर? एप्स्टीन बार, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। और फंगाई है, पैरासाइट है। फंगाई जैसे कैंडिडा स्पीशीज के होते हैं, जो भी कैंडिडा में होंगे दोज आर कैंडिडा स्पीशीज। और पैरासिटिक इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस आर आल्सो देयर। टॉकिंग अबाउट पैथोफिजियोलॉजी की हो कैसे रहा है, पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया है कौन सा है? ग्रुप ए हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, पढ़ा ना आपने? ग्रुप ए हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस, और यू कैन से ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों लिखने से ठीक है। तो वो इन्फेक्शन से क्या होंगे? प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी नॉट डेवलप्ड येट, जिसको भी इम्यूनिटी नहीं है और जो इन्फेक्शन के प्रोन है, जिनको इन्फेक्शन हो सकती है, they will get what? They will stimulate the inflammatory process, उसकी वजह से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस और जल्दी होने लगेगी। इससे इधर क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस होगा और फीवर आ जाएगा, और एल्स किसी को सोर थ्रोट होगा, और एल्स क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी टॉन्सिल्स की, एकदम से इन्फ्लेम्ड हो गई, पता ही नहीं चला, सोर थ्रोट करके दे आर निग्लेक्टिंग, अदरवाइज उन्हें इन्फ्लेमेशन हो गई टॉन्सिल्स में, टॉन्सिल्स की साइज इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से एयरवे obstruct हो गई। अब likewise see in the very first slide the picture is there, अगर ये इतनी ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगी तो यहाँ से एयरवे obstruct होगी या फिर नहीं होगी? और naturally the airway will be obstructed, अगर एयरवे obstruct हो गई तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। अंडरस्टूड? एनी डाउट अप टिल हियर? No, ma'am. पूछना है तो y'all can please ask। हाँ, ओके, गुड। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी? एज आई टोल्ड, सोर थ्रोट विच मे बी परसिस्टेंट एंड रेकरेंट। सोर थ्रोट है, हर बार गला ही दर्द हो रही है, और ऐसे नहीं है अभी, परसिस्टेंट हो रही है तो होते ही जा रही है, एंड रिकरेंट, एक बार सही होने के बाद दोबारा फिर हो गई, फिर दोबारा हो गई, फिर दोबारा हो गई। इट विल बी persistent and recurrent. Tonsils enlarged and bright and may be covered with white exudate. इतनी एनलार्ज है, इन द फर्स्ट पिक्चर ऑल्सो आई हैव शोड यू कि टॉन्सिल इतनी ज्यादा एनलार्ज हो रही है कि दूर से ही दिख रही है। द मोमेंट वी आर आस्किंग द चाइल्ड टू ओपन द माउथ, दे आर एबल टू सी along with white exudates। बाहर देखो ऐसे white पैचेस दिख रहे हैं, दोज आर white exudates के साथ में प्रेजेंट हो गए, और बहुत ज्यादा एनलार्ज है और ब्राइट, दूर से ही दिख रहे हैं। नेक्स्ट विल बी फीवर ऑल्सो विल बी देयर, हेडेक विल बी देयर, एनोरेक्सिया विल बी देयर, भूख नहीं लगेगी, headache will be there. Then dysphagia, dysphagia is difficulty in swallowing, और difficulty in swallowing या तो swallow नहीं कर पा रहे, or else it will be painful swallowing. I hope everybody might have experienced sore throat, किसी को भी cold होने से पहले sore throat होती है। sore throat होने के टाइम में you are able to eat the food properly, painful होती है ना, so this is dysphagia, this difficulty in swallowing, or else it will be painful swallowing. देन माउथ ब्रीदिंग एंड अनप्लेजेंट माउथ ऑर्डर। माउथ ऑर्डर क्यों होगी अनप्लेजेंट? क्योंकि सोर थ्रोट है तो नोज ब्लॉक हो जाएगी, उसकी वजह से माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से अनप्लेजेंट माउथ ऑर्डर, अच्छा स्मेल नहीं आ जाएगा माउथ से। मसल एक विल बी देयर, पेन, बॉडी एक होने लगेगा। मलेस विल बी देयर, मलेस मीन्स बॉडी वीकनेस और फटीग्ड बॉडी। देन एनलार्ज एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स क्या होते हैं? एनी आइडिया एडिनॉइड्स क्या होते हैं? रवि, रवि एनी आइडिया? एटलीस्ट से यस और नो।
I audible to everybody? Yes, ma'am. Then Yes, please ma'am. speak up, no, otherwise I won't be able to know whether I am audible or no. If you all have any idea about adenoids, you can say. If you don't, say no. मैम जो हमारा गले throat का होता जो मैम है, पिछला भाग होता ऊपर है ना, वो सूज जाता है, उस पे swell पैचेस हो जाता है। होते हैं। हाँ, you can say. But क्या है, जो enlarge, जो lymphatic tissues which I told you, adenoids क्या है, lymphoid tissues जो होते हैं वो कहाँ पे present होते हैं, nose और throat के पीछे। तो जिसकी वजह उसमें अगर स्वेलिंग आ गया और उसमें एनलार्जमेंट हो गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बोलने में, ब्रीथ करने में, खाने में प्रॉब्लम होगी। सो दैट इज एनलार्ज्ड एडेनॉइड्स। नेक्स्ट इज हियरिंग डिफिकल्टी होगा। व्हाई? बिकॉज द यूस्टेशन ट्यूब इज कनेक्टेड। पता है आपको, कनेक्टेड रहता है ना यूस्टेशन ट्यूब खाने के लिए, और दैट इज वाई जब कोल्ड होती है तो नेचुरली वी आर एबल टू, अगर हम कोल्ड स्वॉलो भी कर रहे हैं तो पता चलती है। So that is again, yeah, because since it is connected, so hearing difficulty will be there. Otitis media will be there. Otitis media, you all are aware what is otitis media? It's a ear infection. Otitis media middle ear infection की inflammation होती है. Next is snoring. Snoring करेंगे बच्चे because of blockage in the nose और because of इतना यहाँ पर इतना सारा टॉन्सिलाइटिस का इशू है, सो दे विल ओपन द माउथ एंड दे विल स्लीप, सो स्नोरिंग विल बी देयर. देन नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच, यू ऑल आर अवेयर अबाउट नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच. नेजल क्वालिटी मीन्स वीच, जो भी लोग नोज से बोलते हैं ना, समटाइम्स इफ यू हैव अ रनी नोज, क्लॉगिंग हो जाती है, क्लॉग्ड नोज, और यू कैन से रनिंग नोज, एकदम जाम हो गया विच यू कॉल. तो वो टाइम में द वे यू स्पीक थ्रू नोज, that quality of sound is nasal quality of speech. Next, these are all the sign and symptoms of an infant or a child suffering with tonsillitis. Diagnostic evaluation, first we have to take detailed history collection. Complete history of what we will be taking. इससे पहले कितनी बार हुआ है? Why I am asking कितनी बार हुआ है? Because I told you all recurrent और परसिस्टेंट सोर थ्रोट. तो हमको पूछना है इससे पहले कभी सोर थ्रोट हुआ है या फिर नहीं, और सोर थ्रोट हुआ है तो कितनी बार हुआ है, इज इट द फर्स्ट टाइम? बिकॉज एवरी फर्स्ट टाइम इज जस्ट नॉट टॉन्सिलाइटिस. कभी कभी सिर्फ सोर थ्रोट कब हो रहा है, व्हेन वी आर हैविंग और वी आर अबाउट टू डेवलप कोल्ड. कफ और कोल्ड होने से पहले भी हो रहा है. सो वी हैव टू टेक फर्स्ट डिटेल हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक दिस. You have to ask the baby to like make the baby open the mouth and visualize कि कोई तो भी mass, adenoid mass और lymphoid tissue की enlargement ऐसे दिख रही है या फिर नहीं. Note if the child's voice sound muffled or hoarse. अगर voice में hoarseness है, or else if the muffled sound, muffled voice, muffled means slurred voice. Slurred को आप dysarthria भी बोलते हैं ना. Slurred voice means what? एकदम स्लो स्लो बोल रहे हैं क्योंकि इतनी बॉडी में वीकनेस, और दे आर हैविंग सो मच पेन, बिकॉज ऑफ दैट द वीकनेस विल शो. स्लर्ड वॉइस होगी, एकदम स्लो स्लो. जब आप थक जाते हैं कभी तो आप एकदम भागकर कहीं से आएंगे और फिर आई विल आस्क यू टू स्पीक, तो आप नहीं बोल पाएंगे ना. दैट विल बी मफिल्ड वॉइस. टॉकिंग अबाउट होआर्सनेस मतलब हार्श वॉइस, रफ एकदम. जब किसी को सोर थ्रोट होगी या फिर खूब सारा बार किसी को, इफ आई विल टेल कि यू शाउट शाउट, अगर खूब सारी बार चिल्ला चिल्ला कर कोई आएगा और उसके बाद आई विल आस्क हिम और हर टू टेक सम प्रेजेंटेशन, वो टाइप की वॉइस विल बी होआर्स्ड वॉइस. तो होआर्सनेस रहेगी. सोर थ्रोट के टाइम में जब आप बोल नहीं पाते हैं ना, वो वाली वॉइस इज होआर्सनेस. देन इंस्पेक्ट एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स. आपको पहले इंस्पेक्ट करना है, देखना है मुंह ओपन कर कर कि कितनी एनलार्जमेंट है, whether it can be rectified via medications, oral medication से rectify हो जाएंगे या तो फिर नहीं, or else surgery is required. For that purpose you will be doing. Other is throat swab culture. Like in this picture you can see throat culture ले रहे हैं,
ब्लड टेस्ट करेंगे, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, स्ट्रेप्टोकोकल टेस्ट करते हैं हम, क्यों करते हैं, जिससे पता लग जाए कि रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल टेस्ट से ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली इट इज टॉन्सिलाइटिस. Talking about the management, first is medical management which can be included basically, जिसमें acute phase के time में tonsillitis की treatment is symptomatic. Symptomatic treatment means symptom के basis में क्या क्या symptom हो रही है, क्या क्या symptoms होंगी बेबी को tonsillitis में. I have told you all अभी sore throat है, fever, headache और malaise is there, dysphagia है, painful swallowing. So these are signs and symptoms. First of all you have to see, then you have to see whether the baby belongs to the acute phase of tonsillitis or no. अगर है तो symptomatic treatment आप दे देंगे. Symptomatic भी based on the particular baby symptom. अगर for instance baby को sore throat है, fever है, headache है, but baby is not having any other symptoms, so we have to exclude that. Second of all, one second, ma'am not here, you can see that the other side. Acetaminophen और ibuprofen is used for pain. Acetaminophen या फिर ibuprofen देते हैं. ibuprofen सुना है? Ibuprofen is been given for pain. Gargling with warm saline solution for comforting of the child. Warm gargle saline solutions we ask them to take, or else gargle करने के लिए बोलने के बाद में we can either ask them to take throat lozenges. Throat lozenges are nothing but strepsils. Strepsils सुने होंगे ना सबने. Strepsils because it soothes the throat soreness. जितनी sore throat हो रही है उसको soothe करता है. Then अगर bacterial है infection, we have seen bacterial, viral, fungi and parasitic. अगर bacterial infection है तो फिर हम उन्हें antibiotics prescribe कर देंगे, or else antipyretics also we can give to reduce pain or fever. For pain, non-aspirin analgesics and antipyretic to reduce fever. Then tonsillitis is most commonly treated with penicillin. Penicillin is a drug of choice for tonsillitis and 2 to 3 times a day. यानी कि TDS में BD और TDS we are giving for 10 consecutive days. Then erythromycin may be used in children who are allergic to penicillin. Penicillin you can say is the drug of choice for children or for children or infants suffering with tonsillitis. But a person or a child who is allergic to penicillin, we can give erythromycin, or only if it is bacterial we can give antibiotic, or else I told antipyretics can be given, non-aspirin analgesics can be given to reduce the pain. For fever, antipyretics can be given. Any doubt up till medical management? I will ask you all to summarize. Talking about surgical management, तो tonsillectomy is the procedure. Ectomy means removal. तो tonsils की ectomy, that is removal of the tonsillitis. Tonsils को आपको remove करना है, या फिर एडिनोक्टमी करनी है या फिर नहीं करनी है. तो tonsillitis with or without adenoidectomy. So tonsillectomy is considered in case of recurrent tonsillitis. बहुत बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, और अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, और पेरीटॉन्सिलर एब्सिस भी हो रही है. टॉन्सिल्स के आजू बाजू और ऊपर एब्सिस फॉर्मेशन, फ्लूइड कलेक्टिंग, fluid filled some inflammation infection has been collected, so उसके लिए we are doing ectomy. तो किस लिए कर रहे हैं? पहले तो रिमूव कर रहे हैं. दूसरा चीज either it is with adenoidectomy or without adenoidectomy, मतलब एडेनोइड्स के साथ पे हो रही है या फिर नहीं हो रही है, जिसको रेकरेंट हो रही है या नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो हाउ इट इज रेकरेंट है, और एल्स अपर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, या फिर एब्सिस, पेरीटॉन्सिलर एब्सिस फॉर्म हो गई है. सेकेंड इज इलेक्ट्रोसर्जिकल टॉन्सिलेक्टमी. ये एक नई मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज होती हैं जो जनरेट करती है हीट उसी पर्टिकुलर टिश्यू में,
कट करने के लिए और कोगुलेशन करने के लिए। ये टेक्निक से क्या होगा, ज्यादा ब्लीड नहीं करेगा और तो बेबी है उसको ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। बट नाउ डेज वी आर till now we are just using tonsillectomy normal procedure. Electrosurgical is not being used everywhere. It's a very rare procedure which is used, but since it is new, it is not being used worldwide. Next is adenodectomy, which I said either you can write adenodectomy or you can write adenoidectomy. ADENOIDECTOMY. So it is the surgical removal of the adenoids जो nasal breathing को affect कर रही है। यहाँ सी adenoids I have shown over here, ये टॉन्सिल है, ये एडेनॉइड। तो जब टॉन्सिल की एनलार्जमेंट होती है तो वो यहाँ तक आ जाती है, तो जिसकी वजह से दैट एडेनॉइड्स आर आल्सो अफेक्टिंग नेजल नोज ब्रीथ करने के लिए इट विल बी अफेक्टिंग। सो इसीलिए हम इफ इट इज अफेक्टिंग मच तो हम इसे भी रिमूव कर देते हैं, नहीं कर रहा है तो ओनली सिर्फ टॉन्सिल्स को रिमूव कर कर वी कीप इट असाइड। अगर ये इज हिंडरिंग, एडेनॉइड्स आर हिंडरिंग, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते। हिंडरिंग तो इंक्लूड करते, अदरवाइज वी डोंट इंक्लूड, वी कीप देम एज इट इज। Talking about nursing management, first is promotion of airway clearance. पहले airway clear करना है, ऐसे नहीं कि baby is aspirating something and baby have aspiration हो गई है जिसकी वजह से baby is unable to breathe और baby चले गए। Next is like this, provide sideline position or you can, ये this is sideline, right lateral position दे दिया, या तो आप prone दे दो, उल्टा कर दो, ड्रेनेज जो भी है या फिर सिक्रीजन जो निकल रही है वो खुद से निकल जाएगी। सक्शनिंग है, इफ नेसेसरी शुड बी डन टू अवॉइड ट्रॉमा टू द सर्जिकल साइट। सक्शनिंग करना है, व्हाई, बिकॉज सर्जिकल साइट जहाँ पे टॉन्सिलेक्टमी हुई है माउथ के अंदर, वहां पे कोई इंजरी ना होने पाए, इसीलिए आप सक्शन वहां का देन एंड देयर करते हैं। मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम, नॉट लाइक दिस, आई वॉज नॉट गेटिंग पिक्चर्स इसलिए ये लगा दिया है। फ्लूइड वॉल्यूम हाउ यू विल बी मेंटेनिंग बाय, आप या तो IV fluids you can connect or you can ask the mother to breastfeed or you can give normal feeding to the baby. Then after surgery you are supposed to look for any sort of bleeding from the throat, कोई bleed तो नहीं कर रहा है, or else some thick mass is not coming, या जो भी any trauma baby को तो नहीं होगा है, खुद से ही कर दिए हो while doing any sort of mischief। या टू अवॉइड ट्रॉमा आप क्या करेंगे, डिस्करेज द चाइल्ड फ्रॉम कफिंग, खांसने के लिए मना करना है, थ्रोट क्लियर ऐसे करने के लिए मना करना है कि मत करो, ऐसे मत करो, ब्लोइंग द नोज, नोज ब्लो नहीं करना है, एंड यूजिंग स्ट्रॉ, कोई स्ट्रॉ यूज करके पीने की बेबी की आदत है तो वो नहीं करना है, बॉटल से सक करके नहीं पीना है। सो दीज ऑल थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रॉमा यू आर सपोज टू आस्क द बेबीज और द मदर्स, यू शुड एजुकेट कि ऐसे नहीं करना है। Encourage the child to take any fluids, especially कोई mostly fluid diet, liquid diet you are supposed to tell or you are supposed to give to the child. Citrus juice, brown or red fluids to be avoided. Citrus juice खट्टा नहीं खाना है, रेड फ्लूइड्स जो है वो नहीं पीना है, ब्राउन फ्लूइड जो है वो नहीं पीना है। खट्टा खाने से सोर थ्रोट होती है, अभी तो टॉन्सिल्स हट भी गई है, स्टिल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सिट्रस फ्रूट नहीं खाना है। रिलीविंग पेन रिलीफ करना है, आइस कॉलर में भी प्रिस्क्राइब्ड, आइस कॉलर्स को देना है इन केस उनको बहुत इशू, बहुत प्रॉब्लम है, एंड आइस कॉलर्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन जो बड़े हैं, एटलीस्ट स्कूल एज ग्रुप के हैं। एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर करने हैं, पेन हो रही है तो। ओरल फ्लूइड इनटेक बोलना है, अगर इफ द बेबी इज इन द एज ग्रुप ऑफ प्री स्कूल टू स्कूल एज ग्रुप, उसको बोलना है ओरल फ्लूइड्स ले लो खुद से। Understood? Any doubt in the nursing management? There is, you can also maintain nurse. This is the overall general nursing management. You all can make nursing management which can be like divided into two. It can be pre-operative nursing management. It can be post-operative. तो ऑपरेशन टॉन्सिलेक्टमी होने के पहले व्हाट यू ऑल कैन डू, एंड ऑपरेशन होने के बाद। ऑपरेशन होने के पहले यू कैन डू टू थिंग्स। पहले तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट आप कर लो, देन चाइल्ड को प्रिपेयर करो सर्जरी के लिए। सो दिस इज प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पहला है मेक
प्री ऑपरेटिव असेसमेंट. प्री ऑपरेटिव असेसमेंट हाउ इट कैन बी डन. पहले तो सिवियरिटी पता करनी है, हाउ मच द केस इज सिवियर, पहले इवेल्युएट करना है. देन सेकेंडली आपको रिकॉर्ड चेक करने हैं कि इसके पहले कभी भी इन्वेस्टिगेशन हुए थे जिसमें बेबी को कभी भी ब्लीड हुआ हो, या फिर इसके पहले कोई और इसके पहले कितनी बार बेबी had suffered with sore throat और tonsillitis की issue से. So this is all under pre-operative nursing management की first point, which is make pre-operative assessment. Second is prepare the child for surgery. How you will be preparing? पहले आपको बताना है टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू द चाइल्ड कि व्हाट इज द नीड ऑफ टॉन्सिलेक्टमी, व्हाई दे आर डूइंग, और अगर नहीं कराएंगे टॉन्सिलेक्टमी तो उसके क्या प्रॉब्लम्स और क्या साइड इफेक्ट्स होगी. देन अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर सपोज टू आंसर द क्वेरीज. अब उनको क्या क्वेरीज है आपने बता दिया दैट ये नीड है टॉन्सिलेक्टमी का एंड नहीं करा देंगे तो दिस प्रॉब्लम विल अराइज. अपार्ट फ्रॉम दैट if any queries they have any questions regarding the same, then you have to answer those questions, as well as you are supposed to ask the child to talk in a soft voice soon after the surgery. ऐसे चिल्ला कर they don't have to they should not talk. and क्यों आप उनको बोलेंगे कि they should like speak in a very soft voice? क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली भी उसको सोर थ्रोट रहेगा. So you are supposed to tell them कि softly बोलना है. This is all about pre-operative nursing care और nursing management. ये pre-operative आपने लिख दिए. This was all general which I told in the slides. Pre-operative, post-operative way में also you can write. तो pre-operative में I have told you all to make pre-operative assessments, and the second one prepare the child for the surgery. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट विच इज पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर. उसमें क्या होगी, अब जो भी पोस्ट ऑप के बाद आप करते हैं, पोस्ट ऑप के बाद व्हाट ऑल यू विल डू. जब भी आप पोस्ट पेशेंट अगर सर्जरी से बाहर आते हैं तो व्हाट यू विल डू. हर्ष, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जब भी पेशेंट आता है तो आप क्या करते हैं बेसिकली. Harsh, you are there? Look, if you don't know the answer, please say no. If you all are not responding, that will indicate that आप online आकर आप phone छोड़कर चले गए. So if you all are not responding, I will make sure I am marking you all absent. Okay, Harsh is absent for me. Mohit Kapoor, you have any idea post op में आप क्या करते हैं. Mohit also absent. Aman. Aman. Mohit Kapoor, why you are showing, why in chats don't write anything but answer. Akansha, you have any idea? मोहित, हर्ष, मैम ये सब लोग एब्सेंट है. अमन. मैम हम फूड इनटेक करवा एनालिसिस एंटीबायोटिक्स रूटीन. अरे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर सबसे पहले क्या करते हैं आप. अब किसी की सर्जरी हुई है तो सबसे पहले नेचुरली यू विल बी वॉचिंग एंड कंट्रोलिंग हैमरेज. अगर कोई ब्लीडिंग हो गई है उसको यू हैव टू कंट्रोल. नो, तो वॉच एंड कंट्रोल हैमरेज. सबसे पहले हैमरेज से बचाना है आपको. दूसरा वाइटल्स चेक करते हैं आप सबसे पहले. वॉच एंड कंट्रोल फॉर हैमरेज. कोई इंजरी हुई है तो सून आफ्टर रिसीविंग द पेशेंट और द चाइल्ड फ्रॉम द OT you are supposed to monitor vitals. पहले vitals monitor करेंगे और वो भी frequently, every 2 hourly और every 1 hourly आपको चेक करना होता है. You are supposed to observe for increased pulse rate है तो आपको मॉनिटर करना है. ब्लीडिंग माउथ से नोज से कहीं से हो रहा है so that you have to check. You have to make
sure that the child is lying in a position as I told you all, या तो prone position में सोते टाइम या फिर elevated head और else side lying position में आपको रखनी है. Or you are supposed to keep the instruments ready for suctioning articles ready रखना है so that अगर कोई भी bleeding हो गई या हो रहा है तो वो टाइम में you are ready for suctioning. नेक्स्ट, पहले आपने वॉच कर लिया, कंट्रोल कर लिया, वाइटल्स मॉनिटर हो गए, फिर आप एयरवे चेक करोगे कि अगर कोई भी बहुत रैपिडली रिस्पायर कर रहा है अगर बेबी, तो आपको वो चेक करना है. अगर एक्सेसिव सिक्रीशंस आ रहे हैं तो वो आपको सक्शन करना है. देन आपने वाइटल्स मॉनिटर किया, दैट पर्टिकुलर टाइम में यू आर गेटिंग टेम्परेचर, सो फीवर को कंट्रोल करना है. तो एवरी 2 आवरली यू हैव टू मॉनिटर फीवर. And then what you can do to reduce fever, you can give sponging to the baby. फिर भी नहीं जाएगा, then you can prescribe oral medication. If it is a child very small, that time you can provide what? You can give oral paracetamol or else IV fluid, or else if the baby is okay, syrup paracetamol, sorry, oral syrup paracetamol आप दे देंगे. अगर बेबी बड़ी है, school age group, then you can give half paracetamol according to the age of the particular child. Then you are supposed to promote hydration, बोलना है पानी पियो, oral fluids लो. So IV fluids आप दोगे, जब तक दोगे IV fluid जब तक baby is not allowed to take oral foods. oral fluid लेने लगेंगे then you will start IV fluids. अब आप oral fluids कब start करोगे? जब child alert है, मतलब अब बात कर रहा है and he or she is responding और vomiting नहीं कर रहा है, वो टाइम में you will be giving oral fluids. या फिर आपको मील्स देना है बट इट विल बी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, एक साथ भरकर खूब सारा खाना नहीं देना है. यू हैव टू गिव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स टू द चाइल्ड. देन लास्ट ऑफ ऑल, अब सारा कुछ हो गया, यू हैव कंट्रोल्ड द बेबी फॉर एनी हैमरेज है तो उससे बचा लिया, वाइटल्स चेक कर लिए, फीवर है तो वो मेंटेन कर दिया, सिक्रीशंस है तो यू हैव डन सक्शनिंग, फीवर है तो आपने मेडिकेशन भी दे दिया, वो मेंटेन भी कर दिया, हाइड्रेशन लेवल को भी मेंटेन कर दिया. फाइनली बचा क्या? एंजाइटी. पेरेंट्स एज वेल एज द चाइल्ड बोथ आर एंशियस व्हेन द चाइल्ड इज sick or the child is been admitted और यहाँ पे तो child का surgery हो गया. So you have to relieve the anxiety. सबसे पहले how you will be relieving, you have to give reassurance to the child and the parents. और कि थोड़ा blood आता है वो normal है, थोड़ी कॉफी कलर vomiting हो रही है वो normal है, and your ward, your child will be very well, he or she will be fine very soon. और चाइल्ड के साथ एटलीस्ट वन पेरेंट्स यू आर सपोज्ड टू अलाउ. ऐसे नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल, सर्जरी भी हो गया स्टिल यू आर सेइंग नहीं 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 यहाँ कोई अलाउड नहीं है. लाइक दिस यू डोंट हैव टू से. सारे ट्रीटमेंट, सब प्रोसीजर्स यू आर सपोज्ड टू एजुकेट द पेरेंट्स कि ये हमने प्रोसीजर किया है, क्यों किया है. नॉट इनटू डीप लाइन, लाइक नॉट डीप नॉलेज, बट रफ नॉलेज यू आर सपोज्ड टू गिव कि why they have done this procedure and why this treatment is been given. और आप ये भी बताना है दैट सोर थ्रोट ऐसे नहीं है कि टॉन्सिल्स निकाल दिया तो सोर थ्रोट चली जाएगी. आपको बोलना है कि टेम्परेली सोर थ्रोट एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स तक रहेगा ही, और वॉइस में थोड़ी सी चेंजेस आएगी, दैट ऑल्सो विल बी टेम्परेरी. ऐसे उससे डरना नहीं है, और एल्स दे शुड नॉट गेट एंशियस कि वॉइस में चेंजेस आ गए हैं, ईयर पे पेन हो रही है, देन वाइट पैचेस डेवलप हो गई है, और एल्स स्वॉलोइंग में पेन हो रही है. you just have to say don't be anxious, slowly and steadily these all signs and symptoms will subside. कौन कौन से symptoms है? ईयर पेन है, और एल्स वॉइस में मॉडिफिकेशन है, सोर थ्रोट है, और swallowing टाइम में ईयर पेन हो रही है, वाइट पैचेस विल बी देयर. जहाँ पर से वाइट पैचेस वेयर इट विल बी देयर, जहाँ पर से द एक्टमी इज बीन डन, टॉन्सिलेक्टमी हो गई है, वहाँ पर स्टिल वाइट पैचेस आएंगे क्योंकि वहाँ पे वूंड है. सो दिस ऑल विल सबसाइड इन सम टाइम, बट दे do not to be anxious about it. Understood? Any doubt in nursing management? We have seen in the PPT
about nursing management, which is main nursing, general nursing management. Apart from that, we had seen two, which were pre-operative and post-operative nursing care. Any doubt, you all can please ask. Don't sit mum. कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, नहीं है तो फिर वी विल मूव ऑन. अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पेरिटॉन्सिलर एब्सिस. आई टोल्ड यू ऑल, ये देखो टॉन्सिल्स हो गई है, उसमें पैचेस भी हैं, वाइट पैचेस, एक्सीडेट, यहाँ पर एब्सिस फॉर्मेशन भी हो गई, फ्लूइड कलेक्शन भी हो गई है, जिसकी वजह से अदर हो गई है. सी इन द पिक्चर्स टॉन्सिलाइटिस है, यहाँ पर एनलार्ज टॉन्सिलाइटिस है, जिसकी वजह से इन्फ्लेम थ्रोट भी स्वेल हो गया है. Then pharyngitis is there, blocked airway from the swollen tonsils. अब यहाँ swelling हो गया है तो airway will be blocked. ये बढ़कर यहाँ पर एक रॉक जैसी हो जाएगी and यहाँ से सांस लेना फिर बंद. So this is blocked airway from the swollen tonsils. Any other complications you all can add? Peritonsillar abscess, pharyngitis हो गई, blocked airway, और कुछ हो सकता है? Any other complications? यूवुला विल बी इफेक्टेड, नहीं होगी, यहीं पे रह रही और ये अफेक्टेड नहीं होगी. योर रेडनेस विल बी देयर, फुल पेन while swallowing will be there. नहीं. How we can prevent? Wash your hand thoroughly and frequently after using toilet or before eating. खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद वॉश करने हैं हैंड्स. शेयरिंग, अवॉइड शेयरिंग फूड, ड्रिंकिंग ग्लास और यूटेंसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. खाना शेयर करना, ड्रिंकिंग ग्लास और एल्स योर ओन यूटेंसिल शुड नॉट बी शेयर्ड एनी टाइम, नॉट इवन टुडे, नॉट इवन टुमारो. ऐसे नहीं, स्मॉल किड्स है, दैट टाइम यू आर नॉट sharing, that time you all are avoiding, afterwards you all are sharing the same thing. Then teach the child to do coughing exercise like this. कफिंग करना है, हमको बोलना है, कफिंग करनी है, धीरे धीरे कफ करके ट्राई करना है, हाउ टू कफ. These are exercise in a way to exercise. Then teach the child to wash your hands after sneezing or coughing. Sneeze और कफ करने के बाद हाथ धोना है, ऐसे नहीं वहीं wiping in their own pants or shirts. No, they are supposed to wash their hands after every sneeze or after every cough. That we have seen about tonsillitis. Any doubt you all can please ask. We have seen about tonsillitis, the definition, introduction, definition, incidences, where it is common, 4 to 7 years of age, common in winters and in crowded places. Main causative agent is group A, beta, hemolytic, streptococcus. Then pathophysiology we had seen, clinical manifestation में very importantly sore throat, tonsils will be enlarged, white exudate will be formed, dysphagia, mouth breathing and unpleasant mouth odor, enlarged adenoids, snoring, otitis media, hearing difficulty, nasal quality of speech. Diagnostic evaluation, you can see detailed history collection, physical examination, voice changes will be there, muffled or hoarseness will be there in the sound, in the voice, and then you are supposed to inspect for any enlargement of the tonsils. Throat culture has been done, throat swab culture, blood test has been done for rapid streptococcal antigen test. Management we have seen overall, medical and surgical. Medical we have seen normally acetaminophen, ibuprofen. Symptomatic treatment has been given. Gargling with warm, lukewarm water has been given with salt. After that, surgical tonsillectomy is done with or then electrosurgical tonsillectomy and tonsillectomy with or without adenodectomy. Nursing management we have seen overall nursing management and preoperative and post-operative. Complications we have seen overall 3. You can add more as well. 3 you have seen peritonsillar abscess, pharyngitis, blocked airway from the swollen tonsils. Prevention about hygiene is there, so no sharing of food materials or utensils. Coughing exercise the child should be taught to do. Sneezing or coughing के बाद wash करने हैं hands.
before going to the before eating, after eating, before using, after using the toilet, you're supposed to wash their hands. Any doubt you all can ask. By this topic is completed. Thank you.